हुआ ना यहाँ पे, बेसिकली दिस ऑल पोर्शन इज कॉल्ड रिबन, ठीक है। और उसके बाद जो ये जो पोर्शन है, दिस स्पेस इज कॉल्ड डिजाइन स्पेस, ठीक है, या प्रेजेंटेशन विंडो कहते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन विंडो, ठीक है। एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड स्लाइड टैब। यहाँ पे आपको सारी स्लाइड्स के थंबनेल नजर आ रहे हैं। एंड ऑन योर राइट टैब pane there is a portion for comments. Fine, you can see the portion if I add comments, ठीक है। ये देखें, ये पोर्शन जो है ये कमेंट्स का पोर्शन है, ठीक है। कमेंट्स पैन कहते हैं इसको हम, ठीक है। इट शोज और इट अपीयर्स until unless we add some comment. So this is there, this is comment pane. Below whole of this design space there is a status bar where there are notes. If we click in this portion, I can add notes in this area. And these are different views of this whole presentation. This is reading view, this is slideshow, and here I can sort all of the slides. Fine. So this is just about the basic layout of a PowerPoint slide. So what are designs? हम डिजाइन किन्हें कहते हैं? कुछ डिजाइन बिल्ट इन होते हैं, कुछ कस्टमाइज आप करते हैं, कुछ ऑनलाइन टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं। इस वक्त जो मैंने टेम्पलेट यूज किया हुआ है, ये टेम्पलेट जो है ये मैंने ऑनलाइन प्री डिजाइन टेम्पलेट यूज किया है। इसको मैंने खुद डिजाइन नहीं किया इस टेम्पलेट को, ठीक है। तो इसमें ये जितनी भी मोशंस हैं, मॉर्फ है, ये सारा प्री डिजाइंड है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें। सो व्हाट आर द बिल्ट इन डिजाइंस? इफ यू कैन सी in the ribbon pane, there is an option of design. You just click that portion and there are a lot of designs that are already built in the PowerPoint layout. Fine, you can choose any one and the colors are changed according to the template already built in the Microsoft. Moreover, you can change the design with designer tool. For example, if I click this designer, if I have not so many things in my slide, it may artificially adjust all of these templates and icons and elements and make a newer version of design if I click this designer portion. Fine. So you can have built-in design that I have shown you from this portion. These are all built-in design. And then you can customize the design. I'll tell you how can you customize design. And the third type is online templates. So second thing was third thing was online template. I'll discuss first about them and then I'll discuss how to customize the design. अब ये online templates आपको कहाँ से मिलेंगे? ये उसकी कुछ websites हैं. Slides Go है, ये आप note down कर लें. यहाँ से आपको free templates मिलते हैं. आपको template बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. You can take it from Slides Go free of cost. Fine. आप एक account से एक महीने में 5 टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं स्लाइडगो से. Then there is fttp.com. From here you can download the templates. Then Canva is the best version you can use. इतना vibrant है, multiple unlimited color option है, design option है, एनिमेशन के ऑप्शन है. स्लाइड्स एग फॉर इंफोग्राफिक्स, अगर आपने इंफोग्राफिक्स यूज करने हैं तो उसके लिए स्लाइड्स एग यूज करें, ठीक है। इसके अलावा कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं आप डिजाइन को? फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने कस्टमाइज करती हूँ डिजाइन को, जिसमें हम 2-3 चीजें इस्तेमाल करेंगे. वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक ब्लैंक स्लाइड लेंगे. उस ब्लैंक स्लाइड में हम कोई पिक्चर या बैकग्राउंड में वीडियो उसमें ऐड करेंगे. फिर उस ब्लैंक स्लाइड में हम कोई आइकन या 3D मॉडल ऐड करेंगे, शेप्स ऑफ योर ओन चॉइस. और फिर एक कस्टमाइज डिजाइन बन जाएगा, ठीक है। अभी हम खुद एक डिजाइन कस्टमाइज करते हैं, ठीक। अब मैं एक ब्लैंक, देखें जैसे हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कस्टमाइज डिजाइन के लिए. चूज अ ब्लैंक स्लाइड. सो फ्रॉम इंसर्ट आई एम गोइंग टू चूज अ ब्लैंक स्लाइड. I have chosen this slide. Fine. Now I am going to add a picture. For example, from stock pictures, I'm going to add a nature one. I like this picture. This is vibrant. And maybe tally with the theme of my research or my presentation at that time.
For example, I cropped it or I resized it. Fine. I'm going to select the design option and here I click designer. So it will give you multiple option. Oh, it's angry with me. यहाँ हम अब इंसर्ट करते हैं इसमें आइकन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने नेचर का एक हमारी स्लाइड है, तो हम फ्लावर्स के आइकन यहाँ से यूज कर लेते हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जाम्पल ये यूज कर लिया आइकन फ्लावर का, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो हमने इस आइकन को कलर चेंज कर दिया ग्राफिक फॉर्मेट से। इसका कलर हम इसका वाइब्रेंट सा कलर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल येलो कर दिया हमने, ठीक है। और हमने यहाँ अब टेक्स्ट ऐड करना था, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। नेचुरल कलर्स, ये हमारा टेक्स्ट हो गया, ठीक है। कलर इसका चेंज कर देते हैं, यहाँ से वाइट कर देते हैं और डिजाइनर में जाके दोबारा ऑप्शन देखते हैं कि अब हमें ये को डिजाइन देता है या नहीं देता, ठीक है। चलिए, उसने कहा नहीं मैं डिजाइन नहीं दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी पिक्चर उसमें ऐड की, पिक्चर फॉर्मेट में जाके आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप टू शेप कर लें इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्कल कर लिया इसको, ठीक है ना। ये सर्कल हो गया, ठीक है। ये हमने इसके साथ आइकन डाल दिया। ये हमने नेचुरल कलर इसका हेडिंग लिख दिया, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। और आफ्टर दैट हम यहाँ से अब इंसर्ट में दोबारा जाएंगे। मैं जिन एलिमेंट्स की बात करती थी, हम 3D मॉडल यहाँ से लेते हैं, ठीक है। स्टॉक 3D मॉडल क्लिक करें और हमने फ्लावर का एक 3D मॉडल ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल हमें ये अच्छा लगा, हमने इंसर्ट कर दिया इसको। ये 3D मॉडल हमारे पास आ गया। अब आप इस मॉडल को जैसे मर्जी, जिस मर्जी शेप में आप इसे घुमा लें, इधर रख लें और इसको एनिमेशन पे लगा दें, टर्नेबल, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा टर्न करता रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बिल्ड जो है ना कस्टमाइज टेम्पलेट आ गया, ठीक है। कस्टमाइज डिजाइन आ गया, हमारा जो दिल चाहा हमने वो बना लिया। इसको देख लेते हैं अब, ठीक है। ये देखें फॉर एग्जाम्पल, ये अब हमारे पास, ठीक है। इज इट क्लियर? चैट बॉक्स में मैं देखती हूँ कोई चीज विजिबल है कि क्लियर है। जी, एनीथिंग टू बी एडेड, कोई इसमें मजीद अगर आप पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं कि मैंने डिजाइन ये कैसे कस्टमाइज किया है। शुड आई मूव फॉरवर्ड? मैंने एआई वाली चीजें भी बतानी है अभी कि आप पावर पॉइंट को बेहतर कैसे बना सकते हैं एआई के जरिए। यस मैम, आप मूव अहेड करें। जी, मैम आपके प्रेजेंटेशन आपने बंद कर दी है? नहीं नहीं, ये प्रेजेंटेशन मैं ऑन कर रही हूँ। प्रेजेंटेशन ठीक में प्रोसीड कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है मैम, चलें। जी, अब देखें हम एआई कस्टमाइज डिजाइन कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि हम एक ब्लैंक स्लाइड उसी तरह लेंगे, ऐड एंड कस्टमाइज्ड एआई जनरेटेड पिक्चर और आइकन, ठीक है। एंड यूज एआई असिस्टेंट 360 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने ये एक स्लाइड ली थी, वो फिलहाल इसको एआई वो उसका माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर उस तरह कस्टमाइज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं डिजाइन के ऑप्शन में जाऊं और डिजाइनर में जाके तो इससे कस्टमाइज कराऊं तो ये कर देता है। आज पता नहीं क्यों कर नहीं कर रहा, वरना मल्टीपल ऑप्शन दे देता है। तो आप एआई कस्टमाइज डिजाइन माइक्रोसॉफ्ट से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है चैट जीपीटी से आप क्या क्या काम ले सकते हैं, ठीक है। कंटेंट जनरेशन, कोई भी आप प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हैं उसका कंटेंट आप जनरेट करवा सकते हैं। स्पीच राइटिंग, अब आपने फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फोरम्स होते हैं जहां वो पसंद करते हैं कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के बजाय, कोई इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं
या मेरे जिस वर्कशॉप में इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहां मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश हो, तो उसके लिए अगर मुझे कंटेंट को रीड आउट करने के लिए स्पीच राइटिंग की जरूरत हो, वर्ड्स और फ्रेजेस की जरूरत हो, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन का कंटेंट चैट जीपीटी में ऐड करके उसके प्रॉम्प्ट में स्पीच राइटिंग भी करवा सकती हूँ। उसके अलावा जैसे एट द एंड ऑफ सेशन आप लोगों ने मुझसे क्या सवाल इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड करने हैं, मैं क्या करूंगी, मैं अपनी प्रेजेंटेशन का सारा कंटेंट उसमें चैट जीपीटी में ऐड करूंगी और उससे प्रॉम्प्ट दूंगी कि मेक 20 क्वेश्चंस दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो चैट जीपीटी मुझे ऐसे 20 क्वेश्चन दे देगा जो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग मुझसे सेशन के एंड में करेंगे। तो इसी तरह जैसे अब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, रिसर्च की आपने प्रेजेंटेशन करनी है, तो आपने क्या करना है, अब उन अपनी रिसर्च का जो कंटेंट है उसे चैट जीपीटी में ऐड करेंगे और चैट जीपीटी से कहेंगे कि हमें 20 क्वेश्चंस ऐसे दे दे जो हमसे हमारा इवेलुएटर पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद डिजाइन सजेशन आप कैसे करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी वर्कशॉप मेरी थी एक एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो मैंने एआई से डिजाइन सजेशन मांगी कि मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशॉप में कलर पैलेट क्या रखूं, उसमें आइकन कौन से होने चाहिए, ठीक है, और उसका जो है वो बेसिक थीम क्या होना चाहिए। तो आपको डिजाइन सजेशन भी चैट जीपीटी दे देता है। उसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल आपने सब टाइटल जो है वो ऐड करने हैं उसमें, तो आप मेरी सारी प्रेजेंटेशन अब उर्दू में है और मैं चाह रही हूँ कि इंग्लिश में साथ साथ नजर आए, तो मैं उसको लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए चैट जीपीटी को यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इंटरैक्टिव क्विजेज, फॉर एग्जांपल अगर एज ए टीचर आप जा रहे हैं या अगर आप एज ए स्टूडेंट आप मॉडरेट कर रहे हैं अपनी क्लास को, एज ए पीयर मॉडरेट कर रहे हैं और आपको एक टास्क दिया जाता है कि आपने अपनी क्लास से को एंगेज रखना है 20-30 मिनट्स के लिए, तो आप इंटरेक्टिव क्विजेज जो हैं वो चैट जीपीटी से रेलेवेंट कंटेंट के बनवा सकते हैं और उन्हें अपनी पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा निमोनिक जनरेशन जो है ना वो सबसे बेहतरीन, अगर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन आपने कहीं प्रेजेंट करनी है और आपको डिफिकल्ट लग रही हैं चीजें, या आप चाहते हैं कि आपके पीयर्स जो आप उनको बताना चाह रहे हैं वो आराम से लर्न कर लें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनकी हो जाए, तो आप निमोनिक बना सकते हैं अपने किसी भी एक टॉपिक का। फॉर एग्जांपल एस्थमा के रिस्क फैक्टर हैं, तो आप उनका निमोनिक उसको बताएंगे कि ये 5 जो है ना वो रिस्क फैक्टर है उसके, तो इनका निमोनिक जनरेट कर दो, चैट चैट जीपीटी आपको वो निमोनिक भी जनरेट कर देगा। उसके अलावा फीडबैक फॉर्म एंड रिफ्लेक्शन, अब आप तो यूजली जो स्टूडेंट्स हैं वो फीडबैक नहीं लेते अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में, अपनी वर्कशॉप के बारे में या लेक्चर के बारे में। अब हमने अपनी वर्कशॉप्स कंडक्ट करानी होती है तो उसके लिए हमें फीडबैक फॉर्म भी चैट जीपीटी से हम बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक्रोस्टिक्स जो है ना वो आपको हेल्प आउट करती है चैट जीपीटी बनाने में। आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई स्ट्रोक पे, तो अब स्ट्रोक की जो है वो इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है ना, तो वो उसके लिए एक निमोनिक बना देगा, जैसे STROKE ये और CPR के जो स्टेप्स हैं बेसिकली, ठीक है ना, उनकी ये निमोनिक बना देगा। इसे हम एक्रोस्टिक्स कहते हैं। आप इसे सर्च आउट कीजिएगा, ये सारी चीजें जो है पावर पॉइंट के लिए चैट जीपीटी ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा फिर आप उसको अपनी प्रेजेंटेशन को मजीद एंगेजिंग कैसे बना सकते हैं। आप जब रिसर्च को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप आइकन्स यूज करेंगे, ठीक है, 3D मॉडल्स यूज करेंगे, जैसे मैंने पहले यूज किया। अब ये 3D मॉडल है जो यहाँ पे आपको स्विंग करता हुआ नजर आ रहा है। फिर आप शेप्स यूज करेंगे। अब आपको ये जो तीनों डिजाइन है ये ऐसे फील हो रहा होगा जैसे कि ये मूव कर रहे हैं, जबकि ये 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, अगर आपको मैं दिखाऊं, इसको मैं जूम आउट करती हूँ, तो ये पहली स्लाइड थी, उसके बाद ये दूसरी स्लाइड है, आप देख रहे होंगे ये सेकंड स्लाइड है, और उसके बाद ये सेम जो है वो थर्ड स्लाइड है। ये 1 2 3 एक जैसी 3 स्लाइड्स हैं। तो जब मैं इसको ये आपको YouTube पे बहुत सारे ऐसे तरीके जो हैं वो मिल जाएंगे, और YouTube पे भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैनल्स हैं जो आपको अच्छा सिखाते हैं। तो ये मोशन एलिमेंट्स डाल के आप इस तरह अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। ठीक है, फिर इन्फोग्राफिक्स जो है वो आपके आइडिया को ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। जब आपने रिसर्च की प्रेजेंटेशन बनानी है तो आपने इन्फोग्राफिक्स यूज करने हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यूट्यूब में कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छी इन्फोग्राफिक्स सिखाते हैं। सबसे पहला तो पावर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, ये प्रेजेंटेशन में आपसे शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग इसको बाद में भी यूज कर सकें, ये उसका लिंक है। ठीक है,
उसके बाद पावर पॉइंट शो आ जाता है, ये भी बहुत अच्छा है, ये आपको इन्फोग्राफिक्स बनाने में बहुत हेल्प आउट करता है। अगर मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो हमारा पूरा टाइम एक इन्फोग्राफिक बनाने में लग जाएगा। पावर पॉइंट स्कूल भी एक अच्छा इन्फोग्राफिक्स का सोर्स है। कैनवा जो है, सबसे पहले तो मुझे कैनवा बताना चाहिए था। कैनवा बहुत अच्छा है, जस्ट फ्री स्लाइड्स, स्लाइड्स गो, ये सारे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इन्फोग्राफिक्स बना के देते हैं, ठीक है। अब ये एक इन्फोग्राफिक है जो मैंने लेवल ऑफ इंटीग्रेशन लैडर जो है ना, वो शो करने के लिए बनाया था। ये मैं सिर्फ अभी आपको डिस्प्ले करूंगी कि कैसे वो एक एक चीज, हार्मोनाइजेशन पिंक के साथ आ रही है, फिर नेस्टिंग है वो येलो के साथ आ रही है, तो पढ़ने वाले के लिए ये एंगेजिंग हो जाती हैं और एक एक चीज अट्रैक्टिव हो जाती है, वो मिस नहीं होती, ठीक है ना। अब ये नीचे जो है लाइंस अलग अलग से आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इस लाइन का ताल्लुक इन दो टीएस के साथ था और इस लाइन का ताल्लुक इन दो के साथ था, ठीक है ना। अब ये मैं नेक्स्ट भी शो कर रही हूँ, नेक्स्ट भी आप देखें। अब ये पर्पल के साथ एक एरो शो कर रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट जो है ना उसके साथ टू के साथ एक एरो है। इसका मतलब उन दो का आपस में कोई ताल्लुक होगा, और जो बाकी थ्री है उनका आपस में ताल्लुक है, तो एरो उसमें उन तीन के साथ आ गया। तो इन्फोग्राफिक्स आपके मैसेज को बहुत क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है आजकल इंसर्ट वीडियो। आप अपनी जो भी आपकी प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट, वो रिसर्च से रिलेटेड है, आपके लेक्चर से रिलेटेड है, आप उसे वीडियो डाल के उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वीडियो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? पेक्सेल जो है वहां से आपको एक फ्री वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्साबे से कर सकते हैं, वीडी विवो से कर सकते हैं, कवर से कर सकते हैं, लाइफ ऑफ विड्स है, विड्स प्ले है, मजबाई है। अब ये एक मेरी वीडियो थी टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है ना, तो ये मेरी पहली स्लाइड थी। तो आप देखें कि वो जो बर्न हो रहे हैं कागज, वो वक्त गुजर रहा है और ये दोबारा जो है वो रिन्यू नहीं हो सकते इस किताब के कागज, यानी टाइम भी ऐसे ही फ्लो करता है, पास हो जाता है और दोबारा नहीं आता, ठीक है ना। तो ये एक मेरी वीडियो का कवर पेज था या इंट्रोडक्टरी स्लाइड थी टाइम मैनेजमेंट की वीडियो की, ठीक है। तो आप अपनी वीडियो डाल के उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ड्रॉ की यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम एक एक में इन सब जितने भी ये टूल्स ऊपर टॉप पे लिखे हुए हैं मैं उनको टच कर रही हूँ। अगर आप देखें, मैंने आपको होम में जाके पहले इंसर्ट में मैंने आपको पिक्चर के बारे में बताया, शेप्स आइकन्स के बारे में, 3D मॉडल्स, ठीक है, स्मार्ट आर्ट के बारे में मैंने भी नहीं बताया, फिर वीडियो इंसर्ट करने के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया, ठीक है। ड्रॉ जो है यहाँ से आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये हाईलाइटर है, इसे मैं यहाँ से हाईलाइट कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, ठीक है ना। अभी क्लोज पता नहीं कहाँ से होगा, रूलर भी आ गया, ये तो कुछ और ही हो जा रहा है। चलें, कंट्रोल जी करती हूँ, इसको मैं पीछे कर देती हूँ। अच्छा खैर, रूलर तो सब में आ गया, इसका क्या करेंगे? रूलर को क्लिक करती हूँ, खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ड्रॉ से आप चीजें उसमें ड्रॉ कर सकते हैं, आपके पास पेंसिल्स होती हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं। कमेंट का पोर्शन जो है उसका क्या फायदा है? फॉर एग्जाम्पल आप 4-5 लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप सबने रिसर्च प्रेजेंट करनी है, तो वन ऑफ द पर्सन इज एलोकेटेड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू develop a PowerPoint presentation and he makes the presentation and share with all of the peers और colleagues। अब वो सब क्या करेंगे? अब फॉर एग्जाम्पल उसको ये ड्रॉ वाली जो स्लाइड है, वो कह रहा है यहाँ तो टेक्स्ट होना चाहिए था, तो वो कमेंट डाल देगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कमेंट डाल दिया ऐड टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि देखें कितना आसान हो गया किसी भी आपके कोलीग के लिए ये समझना कि अच्छा ये फर्स्ट स्लाइड में कोई गड़बड़ है और ये वाली गड़बड़ थी जो कि मेरे एक कोलीग ने कमेंट किया है जिसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका जो है ना कमेंट का जो पोर्शन है वो हमने देख लिया कि हमें उसका क्या फायदा है। ऑडियो इंसर्ट आप कहाँ से कर सकते हैं? ये ऑडियो का पोर्शन है। आप कोई ऑडियो अपने पीसी से आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग बड़ी मजे की चीज है। आप इसको रिकॉर्ड में जाएं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर लें। जैसे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपनी रिसर्च की प्रेजेंटेशन में आपने सोचा कि मुझे सेलेक्ट एरिया, मुझे ये जो XYZ जो वेबसाइट है, मुझे वहां से कंटेंट जो है ना वो लेना है और वो प्रेजेंटेशन में डालना है। तो आप क्या करेंगे? अभी इस वक्त करंटली ये अलाउ नहीं कर रहा। ये फॉर एग्जांपल हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं
तो ये क्या होगा, अब इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी इस एरिया की, ठीक है। ये हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, ये मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड कर रहा है मुसलसल सारी स्क्रीन को, ठीक है, इस पे जो भी एक्टिविटी हो रही है। अब हम यहीं पे जाएंगे और पॉज कर देंगे, ठीक है। ये मैंने पॉज कर दिया, इसको बंद भी कर दिया। अब हमने देखा कि हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन था ना, वहां पे ये ऑटोमेटिकली खुद रिकॉर्ड हो। आर यू विद मी? आपको बात समझ आ गई है आपने कैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है? हाउ टू गेट अनपेड एंड नॉट। क्रैक्ड वर्जन मिलते हैं, आप उसके ऊपर टोरेंट पे जाके वहां से क्रैक्ड वर्जन ले लें। क्रैक्ड वर्जन जो है ना वो मिल जाते हैं। कोई हेल्प आउट कर सकता है तो काइंडली आप इनको, डॉक्टर साहबा को हेल्प आउट कर दें। ये आपको क्रैक्ड वर्जन मिल जाते हैं, टोरेंट पे जाके वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलें बैक टू द प्रेजेंटेशन, हम दोबारा प्रेजेंटेशन में जाते हैं, ठीक है। हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात कर ली, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। अच्छा, इस वक्त जो है वो मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन अगर दिखाऊं तो आपको उसमें चीजें मूव करती हुई नजर आएंगी, ठीक है। अब वो मैं आपको बताऊंगी क्यों मूव कर रही है, ठीक है ना। ये देखें, अभी आपने देखा यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मूव किए हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी एलिमेंट्स मूव किए हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी मूव किए हैं। अब ये जो मोशन ऑफ एलिमेंट्स है ये किस वजह से है? बेसिकली मैंने क्या किया कि मैं यहाँ ट्रांजिशन में गई और यहाँ से मैंने मॉर्फ को सेलेक्ट कर दिया। अगर आप फेड को कर देंगे तो वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएगा, पुश को करेंगे तो वो ऐसे ऊपर आ जाएगा, वाइप को करेंगे। लेकिन मेरा फेवरेट ट्रांजिशन जो है ना वो मॉर्फ है, ठीक है। ये देखिए मॉर्फ में ना बड़ी मजे की चीजें मूव करती हैं। लेकिन एक और चीज आपने नोट करनी है, अगर आपने मॉर्फ लगाया है ना तो उससे पिछली स्लाइड में वही एलिमेंट्स पिछली स्लाइड में भी होने चाहिए। जैसे आप गौर करें, मेरे यहाँ एक एलिमेंट यहाँ मौजूद है, जब आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो वो एलिमेंट थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। तो अब जब आप स्लाइड शो में इसे देखेंगे तो ये एलिमेंट बहुत स्मूथली थोड़ा सा नीचे मूव कर जाएगा, ठीक है, जैसे इसने मूव किया है अभी, ठीक है ना। तो आपने अगर मॉर्फ की ट्रांजिशन लगानी तो आपके पिछले वाला जो है उस पे वो एलिमेंट जरूर मौजूद होना चाहिए। कोई चैट बॉक्स में मैसेज तो नहीं है? मैम दैट वुड बी ग्रेट इफ समवन कैन हेल्प। थैंक्स मैम। जी जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है कि एज ए कोलीग एक दूसरे को इन मामलात में हेल्प आउट करें। हमें कोई फंडिंग तो होती नहीं है कि हमें हम पेड और प्रीमियम वर्जन लें इन चीज़ों के, ठीक है ना। ना ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इतनी होती है इन मामलात में। तो हमें एक दूसरे को हेल्प कर देना चाहिए। अच्छा, फिर ऑडियो इंसर्ट की बात हो गई, कमेंट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी बात हो गई, एनिमेशन और ट्रांजिशन की बात होनी थी। एनिमेशन आपने कहाँ से करनी है? यहाँ से एनिमेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड शो है, मैंने अपीयर के लिए यहाँ पे एनिमेशन लगाया। अब मैं इफेक्ट ऑप्शन दिखना चाह रही थी कि एडवांस होना चाहिए फौरन या थोड़ी देर बाद आना चाहिए, ठीक है ना। और वन क्लिक पे हो या प्रीवियस वाले के साथ हो तो वो यहाँ से होगा, ठीक है। ये चूंकि मेरे ख्याल है अभी पहला ही है तो फिर वन क्लिक डायरेक्ट ही होगा। अभी आप देखें मैंने इस पे लगा दी है एनिमेशन। एनिमेशन में लगाने से, एनिमेशन तो आया होगा, आप सबको ही आइडिया होगा कि एनिमेशन क्या होती है। ये देखिए एनिमेशन लगाने से बाकी सब तो बाद में, पहले ही अपीयर हो गया। वो स्लाइड शो पे चूंकि एनिमेशन लगी हुई थी तो वो बाद में अपीयर हुआ, ठीक है। फिर आप अपने आप को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये बेस्ट वे आउट है। मेरा अगर दिल नहीं चाह रहा ना कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करें तो एक बेहतरीन तरीका ये है कि मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूं। अब आप ये देखें, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरी आवाज भी आ रही होगी इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने अपना कैमरा भी ऑन कर दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो कह रहा है कि अभी आपका कैमरा ऑलरेडी एक डिवाइस के यूज में है तो वो कैमरा ऑन नहीं किया, अदरवाइज बड़ा बेहतरीन यहाँ छोटा सा कैमरा भी आ जाता है, ठीक है। तो हमारी ये जो रिकॉर्डिंग है ये कुछ हो चुकी है आई होप। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए हो गई है कुछ हद तक, ठीक है ना। आप सेल्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इससे, ठीक है।
अच्छा, दूसरा जो है ना ऑप्शन ये कि इसमें आप सबटाइटल्स भी डाल सकते हैं। रिकॉर्ड योरसेल्फ, आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो भी एंटर कर सकते हैं, ऑडियो भी, और सेव एज शो एंड एक्सपोर्ट टू वीडियो, दो ऑप्शन है। अब आपने जब यहाँ पे स्लाइड शो पे आप जाएं तो आपको यहाँ पे रिहर्स कोच नजर आएगा, ठीक है। रिहर्स कोच आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग आप अपने आप को इसमें रिहर्स कर सकते हैं एज ए कोच। लाइक हम बहुत दफा आ के वर्ड्स बोलते हैं, हमें वो उन चीजों पे पॉइंट आउट करता है, और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने से हमारी प्रेजेंटेशन स्किल बेहतर हो जाती है। तो आप रिसर्च कोच के जरिए इसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेव एज शो का ऑप्शन है। अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक कर देती हूँ तो ये सारी पावर पॉइंट इसी तरह जैसे ये चल रही थी एनिमेशन और ट्रांजिशन के साथ, ये सेव एज शो में जाके तो ये सेव हो जाएगी। पहले क्या होता था, हम पीडीएफ में सेव करते थे कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है ना उसके इंटेलेक्चुअल राइट्स वो रहें और कोई उसको अपना नाम बदल के इस्तेमाल ना कर सके। अब सेव एज शो का ये फायदा है कि जितनी एनिमेशन मैंने लगाई थी वो अब वो पीडीएफ में वो मजा नहीं आता था, प्रेजेंटेशन का एनिमेशन ट्रांजिशन सब खत्म हो जाता था। अब सेव एज शो में ये है कि मैं आपको सेव एज शो भेजूं तो आप एज इट इज सारी प्रेजेंटेशन देख सकती हैं, वही मॉर्फ ट्रांजिशन एनिमेशन सब कुछ देखेंगी आप, वीडियो भी प्ले होगी। लेकिन एक चीज नहीं होगी, आप उसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, यानी कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगी लेकिन आप उसके सारे बेसिक फंक्शंस एंजॉय करेंगे। एक्सपोर्ट टू वीडियो पे अगर हम क्लिक करें तो यही वाली सारी प्रेजेंटेशन जो है ना वो वीडियो की फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे अभी, तो ये सारी वीडियो बेशक मैं अगर बोले बगैर इसको सारी वीडियो में कन्वर्ट करके आपको पावर पॉइंट भेज दूं तो ये कुछ सर्टेन टाइम के लिए एक एक स्लाइड चलती जाएगी और एज ए वीडियो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जी, आपने रिहर्स विद कोच की बात होगी, सब टाइटल्स की बात करी थी। यहाँ कोने में यहाँ पे आपके सब टाइटल लगे होते हैं, ठीक है ना। आपने वो सब टाइटल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, रिव्यू के नीचे है शायद या व्यू के नीचे, यहाँ पे कहीं सब टाइटल्स का ऑप्शन था। एक्सेसिबिलिटी कहाँ चला गया, आई डोंट नो कहाँ गए, लेकिन आप सब टाइटल भी इंसर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाती है बात आगे एआई की, ठीक है। एआई इज माय फेवरेट टॉपिक। तो पावर पॉइंट में एआई एक्सटेंशंस होती हैं। अगर आप एड ऑन्स की बात करें, इसके एड ऑन्स कहाँ पे चले गए, एड ऑन्स का आइडिया है आप लोगों को? किसी को एड ऑन्स के बारे में पता है? मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताएं ताकि मैं उसके मुताबिक गाइड करूं। कैन यू प्लीज रिपीट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइम पॉइंट? नहीं, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं दोनों चीजें देखती हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जी जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे, रिकॉर्ड में जाएं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है। हमने इसको क्लिक किया। मैं चाह रही हूँ कि मैं एक सर्टन वेबसाइट है, मैं उस वेबसाइट में जाके एक एरिया सेलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है, मैंने उसका एरिया सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने रिकॉर्ड का बटन दबा दिया। अब वो 1 2 3 1 जब दबेगा दबेगा तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम इसे स्टॉप करना है तो हमने फिर अगेन टॉप पे जाना है और पॉज कर देना है। फाइन, यहाँ से हम इसको क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी ये जो स्क्रीन है वह प्ले हो जाएगा यहाँ से, ये देखो। ठीक है, इज इट क्लियर? अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ ताकि मेरी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो अपसेट ना हो। अच्छा, एड ऑन्स क्या होते हैं? दिस इज एड इन्स, एड इन्स बेसिकली यहाँ आप क्लिक करें और यहाँ पे आप घोस्ट राइटर को आप कर लें एड इन में, ठीक है ना। घोस्ट राइटर को कर लें, मेरे पास शायद ऑलरेडी हुआ हुआ है। मोर एड इन्स देख लेते हैं। यहाँ सर्च करें घोस्ट राइटर, ठीक है। अब घोस्ट राइटर बेसिकली क्या है, ये जो आप चैट जीपीटी वहां पे वहां से सारा काम करते हैं चैट जीपीटी से, तो आप वही काम क्या करेंगे, आपने उसको यहाँ से कोई घोस्ट राइटर यहाँ से ले लेंगे आप, ठीक है ना।
ऑल एवरीवेयर। बेसिकली आपने कोई भी यहाँ से कोई चीज एक्सटेंशन उसमें ऐड करनी है ना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी एक्सटेंशंस हैं। इनका फायदा क्या होगा इन एक्सटेंशन का भी मैं आपको बताती हूँ। QR कोड हो गया, घोस्ट राइटर जो है वो नजर नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मेरे अपने एडिन्स में है, तो मैं वहां से निकालती हूँ, ठीक है। ऑफिस एडिन्स, ये देखें, ये घोस्ट राइटर जो है ना मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये आप, चूंकि मैंने तो ये किया हुआ था, तो आपकी जो है वो विश लिस्ट में आ जाएगा। ये ऐड नहीं हो रहा शायद। जी, अब ये खुल गया साइड पे। अब इसका क्या फायदा है? फॉर एग्जाम्पल मैंने अब अपनी कोई टॉपिक देना है, तो मैं इसी को दे दूंगी टॉपिक के दिस वर्जन ऑफिस इज नॉट, यू विल नीड मोर मॉडर्न वर्जन, ठीक है। तो स्टार्ट फ्री ट्रायल, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना है यहाँ? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे मुझे आपको टॉपिक बताएं, हम क्या सर्च करना चाहेंगे, मैं किस चीज के कोई कंटेंट एक स्लाइड का बताएं, मुझे मैसेज में बताएं, किसी एक स्लाइड का कंटेंट बताएं मैसेज में, हम उसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। हम एक स्लाइड बनाना चाह रहे हैं, उसका कंटेंट आप काइंडली मुझे बता दीजिएगा। कॉलिसिस्टेक्टमी, ठीक है, हमने कॉलिसिस्टेक्टमी पे एक स्लाइड बनानी है। हम यहाँ आ जाते हैं, हम उसे कहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स फॉर कॉलिसिस्टेक्टमी एंड लिस्ट 5 रिस्क फैक्टर्स फॉर कॉलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। हम एक स्लाइड ऐड नहीं ना कर लें कहीं, इसमें फिर प्रॉब्लम होगा ना। एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने क्या कहा उसे, नो एजेंट्स, एजेंट सेलेक्ट करें। हमने कहा कि हम क्लिनिकल जो है ना वो है, डॉक्टर हैं, तो हमें कोई उस तरह की बात करें हमारे साथ, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है। हम डॉक्टर हैं, तो हमने कहा जी हमें एज ए डॉक्टर ट्रीट करें। एकेडमिक स्टाइल, स्टाइल कौन सा यूज करना है, एनालिटिकल, ऑगमेंटिव, हमने कहा नहीं, हमें आप एकेडमिक में ले जाएं, ठीक है। अब आपने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब उसने क्या किया कि रिस्क फैक्टर तो बता दिए, लेकिन बताए उसने बड़ी डिटेल में, अगर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, उसने रिस्क फैक्टर बता दी। यहाँ पे उसने बल्कि पूरा प्रपोजल ही बना दिया है। कौन से रिस्क फैक्टर है? एज है, ओबेसिटी है। आप चाहें तो आप हर एक रिस्क फैक्टर के अलग से स्लाइड बना सकते हैं। ये गालस्टोन कॉम्प्लिकेशन बता दी उसने, प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरीज, को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, ये उसने रिस्क फैक्टर आपको बेसिकली सारे बता दिए हैं, ठीक है। तो आप घोस्ट राइटर के जरिए अपनी स्लाइड का कंटेंट यहाँ पे बना सकते हैं। आपको बताने का मकसद ये है। इसी तरह आप प्रो वर्ड क्लाउड है, ये भी एड-इन्स में आता है। जैसे आपकी स्लाइड में सबसे ज्यादा जो अल्फाज हैं, ये आप उनको, ये क्या करेगा कि आप अपने उसे पेस्ट कर देंगे और ये इस तरह की फॉर्म में उन अल्फाज को कन्वर्ट कर देगी। सब आपके यहाँ से एड-इन्स में आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुझे भी अब, क्योंकि अब शायद नेट नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं क्रिकेट को। अब ये चैट जीपीटी फॉर पावर पॉइंट भी देखें, यहाँ पे आ गया को पायलट फॉर पावर पॉइंट। आपने इन सबको जो है ना एड-इन्स में डालना है, जो आपका दिल चाहता है वो यहाँ से आप मेंटीमीटर डाल सकते हैं आप, ठीक है ना। BI अगर आप यूज करना चाहते हैं, पेक्सेल आपको बहुत सारी फोटोज का ऑप्शन दे देगा। यानी आपके पास एक तो स्टॉक फोटो का ऑप्शन होगा पावर पॉइंट में, अब बस उसके अलावा जो है वो एड-इन्स में मजीद फोटोज का भी ऑप्शन होगा। लाइक इसको मैं ऐड कर लेती हूँ, तो ये जो है ना अब मेरे पास, जी हम एग्री करते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि मैं यहाँ से पिक्चर्स भी ले सकती हूँ। इस तरह पिक्सटन कॉमिक कैरेक्टर है, ये भी एक एड इन है, ये भी मैंने यहीं से लिया था। तो ये इसने, मैंने अपना कॉमिक खुद बनवाया इससे, ये वाला, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन देता है ये। अब जैसे ये देखें, ये पैक्सेल है, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं नेचर की पिक्चर इसे कहती हूँ, मुझे कोई नेचर की पिक्चर दे दो जो मैंने इंसर्ट करनी है। जैसे ये हम कोई सर्जिकल कोई पिक्चर ले लेते हैं, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ गए। लाइक हमें यहाँ से पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन देता होता था, इसके अलावा हम एड इन्स के साथ यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन ले लेते हैं पैक्सेल से, ठीक है। तो ये हमारी एड इन्स वाली बात हो गई।
फिर कौन कौन से ऐसे एआई टूल्स हैं जो पावर पॉइंट बनाने में हेल्प करते हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों को बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे प्रेफर नहीं करती इनको, क्योंकि हमारा काम बहुत टेक्निकल होता है। तो ये आपको बड़ी सुपरफिशियल सी सोशल साइंसेज की जो प्रेजेंटेशन है, जो आधे घंटे में बन जाती है, उसके लिए हेल्प आउट करते हैं। टूम एआई है, स्लाइड्स गो है, सिंथेजिया है, स्लाइड एआई आईओ है, और चैट जीपीटी है। ये सब आपको पावर पॉइंट बनाने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा पावर पॉइंट बनाने में देखें और क्या क्या चीजें चाहिए। आपको कंटेंट जनरेट करना चाहिए, तो कंटेंट के लिए आपको कॉपी एआई बहुत अच्छा टूल है, कन्वर्जन एआई भी बहुत अच्छा टूल है, और चैट जीपीटी तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। आई रियली बिलीव इन पावर्स ऑफ चैट जीपीटी। मैं अभी रीड आउट कर रही थी कि पैथोलॉजी की रिपोर्ट्स जेमिनाई एआई अच्छी रीड आउट करता है, ये चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी ने 97.9% रिपोर्ट्स को ठीक रीड आउट किया था। को पायलट जो है वो इसलिए बेहतरीन है कि वो फ्री है, उस पर हमें पैसे नहीं देने पड़ते। फिर पावर पॉइंट में आपको ग्रामर चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप ग्रामरली यूज कर सकते हैं, ट्रिंका एआई यूज कर सकते हैं, प्रो राइटिंग एड यूज कर सकते हैं। लेट मी चेक सम मैसेजेस। आई कांट फाइंड एड इन ऑप्शन इन माय पावर पॉइंट। डॉक्टर साहब आप ऐसा करें, यूट्यूब की वीडियो देखें आप, आपको एड इन कहाँ से ढूंढते हैं। वैसे हमने आपको मैं दिखा देती हूँ, जो पावर पॉइंट है उसमें ये रिबन इसे कहते हैं, रिबन, ठीक है। तो रिबन में आपको ये मिलते हैं, आप होम पे जाएंगे ना, ये देखिए होम दबाएंगी तो आपको ये एडिन्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। आप होम पर आए, फिर आपको एडिन्स नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने पावर पॉइंट की ग्रामर भी चेक कर ली। अब पावर पॉइंट में अगर आपने इमेज जनरेट करवाने हैं अपनी रिसर्च से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड, तो आप चैट जीपीटी में डेल ई आता है, उससे जनरेट करवा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर से करवा सकते हैं आप। को पायलट लिखना भूल गई हूँ मैं, को पायलट हो गया। और उसके अलावा आजकल एक और कौन सा इमेज जनरेटर आया हुआ है हमारे पास, फ्री इमेज जनरेशन किससे करते हैं आजकल, बताएं आप। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यूज करते हैं बिला वजह में, फजूल फजूल कामों के लिए, किससे यूज करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऑफिस वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज किया करें ऑनलाइन, ठीक है ना। बटरफ्लाई बाय एडोबी बिंग से भी आप कर लेते हैं। उसके अलावा मेटा, मेटा को भूल गए आप, मेटा से आप हर वक्त बैठ के व्हाट्सएप से क्या करते हैं, इमेजेस बनाते हैं और क्या करते हैं। मेटा से आप वही काम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मेटा का हम इस्तेमाल अच्छा करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी फॉर प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था कि वो क्या क्या कर सकता है। आपकी प्रेपरेशन फॉर क्वेश्चन आंसर कर सकता है, वीडियो लेड सजेशन कर सकता है आपको कि आप कौन से आइकन डालें, कौन सी डायग्राम डालें, कलर पैलेट क्या होगा, प्रेजेंटेशन का स्क्रिप्ट लिख सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा इस प्रेजेंटेशन में अगर कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये एंड पे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉन्टेक्ट नंबर जो है ना यहाँ से नोट डाउन कर लें, पिक्चर ले लें आप। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस पावर पॉइंट से रिलेटेड आप मुझसे इस नंबर से राब्ता करके पूछ सकते हैं, बाद में भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उसके लिए आप थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा, माइंड ना कीजिएगा, कुछ देर बाद भी कई दफा रिप्लाई करती हूँ कमिटमेंट्स की वजह से। तो ये हमारा ऑल अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपनी एक और वर्क हमारी थी आज की, वो थी कि हम पावर पोस्टर कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो पोस्टर बनाने के लिए बेस्ट वे आउट जो मैंने सोचा वो है कैनवा। इज देयर एनी क्वेश्चन? लेट मी सी द चैट बॉक्स, आई डोंट नो फ्रॉम विच साइड वी कैन डाउनलोड एड ऑन्स। एड इन्स जो है ना डॉक्टर साहब, बस किसी जगह से आपने डाउनलोड नहीं करने, आप अपने रिबन में देखेंगे एड इन्स लिखा होगा। तो जिन एप्स को माइक्रोसॉफ्ट इजाजत देगा वो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट के एड इन्स में पड़ी होंगी, सिर्फ आपने उनको इनेबल करना है, अपनी लिस्ट में डालना है, ठीक है। उनको जब आप क्लिक करते हैं ना तो वो ऐड हो जाती हैं। जैसे मैं अभी आपको दोबारा एक दिखा देती हूँ, ये एड इन्स में गए हम, ठीक है। तो मुझे ये पावर पॉइंट फॉर चैट जीपीटी अच्छा लगा तो मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। अब वो मेरी उस लिस्ट में चला गया जो मेरे एड इन्स वाली है, समझ गई। ये देखिए मुझे यहाँ अपीयर भी हो गया चैट जीपीटी पावर पॉइंट, ठीक है। ये देखें यहाँ
हाउ टू गेट स्टार्टेड, ये सारा आ भी गया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए सही हो गया। ठीक है, यहाँ से आप अपनी प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट, और क्रिएट फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब से क्या कर सकते हैं ये मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पे आप यूट्यूब का लिंक शेयर करें और उसके बाद उस यूट्यूब से कहें कि चलो अब नंबर ऑफ स्लाइड बना दो। कितना आसान है इससे स्लाइड बनाना। लो, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं बाकी दोनों जो है ना वो प्रेजेंटेशन जो थी वो इसी से बनवा लेती। बेस्ट वे आउट है ये चैट जीपीटी फॉर पावर पॉइंट। आप देखें बहुत जबरदस्त है। यूट्यूब से आप कोई भी लिंक शेयर करें और उसकी नंबर ऑफ स्लाइड यहाँ पे बनवा लें। और नहीं कुछ तो आपको कोई अच्छी वीडियो लगती है जो आप दिल चाह रहा है आपका कि बाद में भी इसका कंटेंट आपके पास रहे, तो आप वैसे ही अपने लिए बना के रख लिया करें, ठीक है। पावर पॉइंट में कौन सा फॉन्ट साइज दूर से भी क्लियरली नजर आता है, प्रेजेंटेशन, वर्कशॉप, एटसेट्रा। वैसे यूनिवर्सली सबसे अच्छा टाइम्स न्यू रोमन को समझा जाता है। और आपका जो हेडिंग है वो 28 से 32 या 40 तक होनी चाहिए, और आपका जो टेक्स्ट है वो 20 तक होना चाहिए। ये आपकी पावर पॉइंट का जो है ना, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी कैनवा वाली प्रेजेंटेशन पे, ठीक है, कि हमने पोस्टर कैसे बनाना है। अच्छा ठीक है, क्राफ्टिंग एंगेजिंग पोस्टर चार्ट्स एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हो गई, हम आएंगे पोस्टर्स पे। तो सबसे पहले हम कैनवा का इंटरफेस को समझते हैं। कैनवा में बेइंतहा टेम्पलेट्स होते हैं। आप इवन के डॉक्यूमेंट्स बनाने के टेम्पलेट्स भी, इस वक्त आपका दिल चाह रहा है ना आप खूबसूरत से डॉक्यूमेंट पे अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं, तो आप कैनवा डॉक्स को यूज करें, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंटेशन बनाने को दिल चाह रहा है तो आप प्रेजेंटेशन का टेम्पलेट यूज करें, ठीक है ना। Start from design journey with ease. Choose from thousands of professionally designed templates categorized from various needs ranging from presentation, flyer to social media posts and more. Use the search bar to find templates specific to your project. ठीक है ना, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाना उसकी आप टेम्पलेट चूज करें। अब ये कैनवा का इंटरफेस है जो आप गौर से देखें, तो ये इसकी सर्च बार है, ये वाली। और ये आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं टेम्पलेट्स के। आपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, व्हाइट बोर्ड के लिए ये, प्रेजेंटेशन के लिए ये, सोशल मीडिया के लिए ये हो गया, इन्फोग्राफिक्स यहाँ से बनाएंगे, फ्लायर यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आपका कैनवा का इंटरफेस है जिसमें ये आपकी सर्च बार है, जहां से आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है आपने सर्च करना है उसको, कि मैंने पोस्टर बनाया तो आप पोस्टर लिखेंगे, फ्लायर बनाया तो फ्लायर लिखेंगे, वो आपको रेलेवेंट साइट ऑफ एक्शन पे ले जाएगा, ठीक है ना। चलें, अब मैंने फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही थी, तो टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं इसको, ठीक है। टेम्पलेट्स को क्लिक करेंगे ना तो आपके पास बहुत से अनलिमिटेड ऑप्शन आ जाएंगे कि प्रेजेंटेशन बनानी है, सोशल मीडिया, वीडियो, मोर, जो आपका दिल चाह रहा है, ठीक है। अब आ जाती है डिजाइन स्पेस। जैसे हमने प्रेजेंटेशन स्पेस या प्रेजेंटेशन व्यू स्लाइड्स के लिए देखा था ना प्रेजेंट पावर पॉइंट में, बिल्कुल उसी तरह डिजाइन स्पेस होती है कैनवा में, ठीक है। योर क्रिएटिव प्लेग्राउंड, यहाँ आप जैसे मर्जी खेलें। एक ब्लैंक कैनवस वो देते हैं, उस ब्लैंक कैनवस को आपने उसको जिंदगी के रंग भरने हैं उसमें। उसमें आप एलिमेंट्स ऐड करें, रिमूव करें, इमेजेस, टेक्स्ट और आइकन्स, शेप्स, जो दिल चाह रहा है, ठीक है। क्लिक ऑन एनी एलिमेंट्स टू एडिट और ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट्स टू रिपोजिशन देम एज नीडेड, ठीक है। अभी हम देखेंगे बी से आगे। फिर आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एक पेन होता है जिसे आप कहते हैं टेक्स्ट टूल पेन। उस टूल पेन में क्या है, टेक्स्ट टूल्स हैं, इमेजेस एंड एलिमेंट्स हैं, जहां से आपने चीजें डालनी, भी हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे। बैकग्राउंड है, अपलोड कर सकते हैं आप चीजें। आपका दिल चाह रहा है कैनवा से बाहर से कुछ चीज अपलोड करें, आप क्रोम से डाउनलोड कर लें और अपलोड वाले ऑप्शन में जाके आप उसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये टूल बार में क्या कुछ है ये मैंने आपको बताया। विजुअल एलिमेंट्स है, ग्राफिक्स हैं, इमेजेस, आइकन्स, ग्राफ्स आप डाल सकते हैं, एआई जनरेटेड इमेजेस है, मैजिक राइड की फैसिलिटी है, यानी वो खुद ही सजेस्ट करता है आपको। अब ये कैनवा की वेबसाइट का लिंक है जिसको आप क्लिक करके तो यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। अब हम उसे यूज किस किस काम के लिए कर सकते हैं, मल्टीपल यूजेस हैं कैनवा के, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ आपका मेरा फोकस है पोस्टर फॉर पेपर प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। तो ये एक रिसर्च पेपर है, ठीक है। अब हम पहले कैनवा का इंटरफेस देख लें ताकि हम बाकी काम कर सकें, ठीक है ना। ये हम आ गए होम पे, ठीक है। हम ये होम पे आ गए और ये वही इंटरफेस जो मैं आपको दिखाई थी, ये सर्च बार है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पोस्टर सर्च करते हैं, ठीक है। पोस्टर सर्च कर लिया तो हम यहाँ पे
हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे पोस्टर बनाने के। ये देखें, ये पोस्टर बनाने के टेम्पलेट्स हैं। मैंने सिर्फ पोस्टर लिखा है, अगर मैं रिसर्च पोस्टर लिखती तो मुझे उस तरह का पोस्टर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हम दोबारा बैक करते हैं इसको, हमने ये नहीं सिलेक्ट करना, या हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और दोबारा होम पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम टेम्पलेट पे जाएं तो यहाँ हमारे पास अनलिमिटेड टेम्पलेट्स हैं। यानी अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप डॉक्यूमेंट बना लें, अगर नहीं दिल चाह रहा है व्हाइट बोर्ड यूज करना है, पोस्टर बनाना है, पोस्टर डबल साइडेड बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, फ्लायर बनाने हैं, और डॉक्यूमेंट, फेसबुक पोस्ट, ठीक है, जो आपका दिल चाह रहा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी आपको मैं एक प्रेजेंटेशन सिर्फ दिखाऊंगी कि अगर मैंने पावर पॉइंट कैनवा से प्रेजेंटेशन बनाई थी तो वो कैसी थी, ठीक है। अगर वो जल्दी मुझे मिल गई तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बनाना शुरू की थी, लेकिन मैंने फिर अभी आगे मेरे बेटे ने मुझे इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। ये 6 years old, तो उसको मैं मना नहीं करती, लेकिन मैं आपको एक दो इसकी जो है ना एनिमेशंस आप देखेंगे ना, तो आपको फील होगा कि ये कितना वाइब्रेंट कलर है इसमें, और ये पावर पॉइंट से ज्यादा खूबसूरत है इसके अंदर प्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक बिल्कुल ही अलग से वर्कशॉप है, इस पे ये इसको इसमें कवर करना मुश्किल है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये अब ये मैंने कैनवा की वर्कशॉप करानी थी, तो आप सिर्फ उसकी एनिमेशन चेक करें आप, ठीक है। आपको एनिमेशन जो है ना वो, ये बाकी आगे मेरे बेटे ने खुद ही इसको ऐड किया हुआ है, ये उसको बग्स बहुत पसंद है तो ये उसने खुद ही एनिमेशन लगाई हुई है, ये जैसे ईस्टर एग है, ठीक है। लेकिन आप प्रीवियस एनिमेशन को देखें तो ये सारी बड़ी मजे मजे की हैं, ये पावर पॉइंट में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती, ठीक है। कोई क्वेश्चन में जरा देख लूं। फ्रॉम विच साइड वी कैन डाउनलोड एड ऑन्स, ये तो हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो हम कर रहे थे बात कैनवा के डिजाइन्स की, ठीक है। और ओहो, आई थिंक मेरी प्रेजेंटेशन गायब हो गई है ना। इज दैट सो? जी मैम, जी बस, आपकी प्रेजेंटेशन बंद हो गई है। अजी मैं दोबारा करती हूँ उसको, स्क्रीन को दोबारा करती हूँ, ठीक है। अब विजिबल है? यस मैम, अब विजिबल है। चले ठीक है। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने डिजाइन पे। अब हम बात कर रहे थे कि डिजाइन स्पेस क्या होती है, ठीक है। फिर हम फॉर एग्जांपल, अब मैंने पोस्टर बनाना है तो मैं यहाँ रिसर्च पोस्टर सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। रिसर्च पोस्टर, ठीक है। सॉरी, ये मैंने प्रोजेक्ट्स में से निकाल लिया, टेम्पलेट्स में जाते हैं हम, ठीक है। रिसर्च पोस्टर मैंने सिलेक्ट किया, और हमारे पास मल्टीपल डिजाइन आ गए यहाँ पे बिल्ट इन, ठीक है। आपका दिल चाह रहा है आप क्रिएट ब्लैंक से शुरू कर लें, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच आप शुरू करें, यहाँ पे जाएं, आप बेशक कोई कलरफुल बैकग्राउंड डाल लें। ये देखें, हमने पर्पल कलर डाल लिया, व्हाइट डाल लिया, ग्रे, जो दिल चाह रहा है। फिर हमें लगा नहीं ये मजे का काम नहीं है, हम डिजाइन्स देखते हैं इसमें कौन कौन से डिजाइन है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि नहीं, ये डिजाइन होने चाहिए हमारे पास, रिसर्च पोस्टर के डिजाइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, आप जिस चीज को यहाँ से क्लिक करेंगे ना, यहाँ सर्च बार में आप उसे सर्च करेंगे। एलिमेंट्स को क्लिक किया हो तो आपको यहाँ पे आइकन नजर आएंगे, डिजाइन को क्लिक किया तो डिजाइन की बार हो जाएगी, टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट की टाइप्स हो जाएंगी, ठीक है। जो आप क्लिक यहाँ से टूल पेन में करेंगे आप उसकी सर्च बार में चले जाएंगे, ठीक है। हमने रिसर्च पोस्टर यहाँ सेलेक्ट किया, और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ये एक पोस्टर अच्छा लगा है, ठीक है, हमने इसको क्लिक कर दिया और ये हमारे पास आ गया रिसर्च पोस्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि हमें ये अच्छा लगा है तो हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है। ये हम इसको पहले जूम इन कर लें, ठीक है।
ये हमारा टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये टाइटल अच्छा से यहाँ डालते हैं अपना। तो मैंने टाइटल के लिए एक कंटेंट बनाया था। ये देखें, हम यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं। ये बहुत बड़ा टाइटल है। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया। ठीक है, अच्छा मैं इसे जूम इन कर रही हूँ थोड़ा सा ताकि नजर आए आपको। ये मैंने यहाँ पे टाइटल लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे आगे ऑथर्स के नाम, यहाँ ब्रीफली जो है वो इंट्रोडक्शन। आपने ये प्री डिजाइन कोशिश करें, अगर आप लेना है तो आप ले लें। यहाँ पे आपकी इंट्रोडक्शन आ गया, एक लाइन का ऑब्जेक्टिव आ गया, मेथोडोलॉजी आ गई, ये रिजल्ट्स आ गए। फिर कोई आपने इमेजेस डालने हैं, इमेजेस और एलिमेंट्स जरूर डालने, ये आपकी फाइंडिंग्स आ गई। ठीक है ना, रिसर्च वो आपके ग्राफ्स आ गए, ये आपका एनालिसिस आ गया, डाटा एनालिसिस, और ये कंक्लूजन आ गया। अभी बहुत खूबसूरती से ये सब चीजें बहुत ही अब आपको क्लियरली नजर आ रही हैं। जरूरत के मुताबिक आइकन्स यूज किए हुए हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर हमने इसे वो करना है, एडिट करना है, एडिट करना मैं सिखा देती हूँ। आई होप कैनवा तो आप सब यूज करते हैं। इसको डबल क्लिक करें और अपनी मर्जी का कंटेंट इसके अंदर लिखना शुरू कर दें जो आपको आपका दिल चाह रहा है। ठीक है, अगर आपने इमेज चेंज करना है तो आप इस इमेज को यहाँ से डिलीट करेंगे और आप एलिमेंट्स में जाएंगे, और एलिमेंट्स में आप, बल्कि आप फोटोज में जाएंगे नहीं, एलिमेंट्स में जाके आप फ्रेम्स में जाएंगे। ठीक है, फ्रेम्स में गए और आपने एक फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। ये फ्रेम आपने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया। इसको कस्टमाइज करें, इसके साइज के मुताबिक कर लें। ठीक है ना, और उसके बाद इसमें आप अपना रिक्वायर्ड इमेज ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ अपलोड करती हूँ, अपलोड्स में जाती हूँ और कोई एक इमेज उसमें ऐड कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज में इसमें ऐड कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ये देखिए अब उसके अंदर चला गया। ठीक है, आपने इमेज चेंज करना है यहाँ से कर सकते हैं, ग्राफ को भी आप यहाँ से डिलीट करके अपनी मर्जी से यहाँ नया ग्राफ ऐड कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टर जो है वो कैसे आपने डिजाइन करना है, आपने टेम्पलेट्स लेने हैं और टेम्पलेट से डिजाइन करना है। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रॉम स्क्रैच जो है वो करना शुरू करें। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा रिसर्च पोस्टर पूरा ही, तो हम इसको सारे को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं हमें यहाँ ब्लैंक स्पेस दे दे। ठीक है, तो हम ब्लैंक स्पेस के ऊपर काम करना शुरू करें। सबसे पहले यहाँ बैकग्राउंड डाल दें आप पोस्टर में। ठीक है, ये मुझे बैकग्राउंड बेहतर लगा था, ये हमने बैकग्राउंड ऐड कर लिया। ठीक है, तो आप टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे हेडिंग ऐड की, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आपने ये सोच लिया कि ये मैंने इसमें मुझे लेआउट में कितने बॉक्सेस चाहिए। ठीक है, और मेरे बॉक्सेस का टेक्स्ट कितना है। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो गया, हमने टाइटल उठा के ऊपर कर दिया और यहाँ पे डिफरेंट शेप्स डालना शुरू कर दी जिन शेप्स में हम काम करेंगे। ठीक है, शेप्स में चले गए हम यहाँ से, और ये नहीं फ्रेम्स में ही है अभी। यहाँ सर्च बार में आपने पहले एलिमेंट्स में जाना है, जैसे मैं यहाँ एलिमेंट्स में गई, फिर हम शेप्स में जाएंगे। ठीक है, ये हमने शेप सेलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, स्क्वायर हमें अच्छा लगा, हमने कहा स्क्वायर हम ऐड करेंगे। ठीक है, हमने स्क्वायर को, हमने यहाँ पे सोचा कि हमारा इंट्रोडक्शन इतना सा है। ठीक है, और हमारा इसी को कंट्रोल डी करेंगे, तो हमने कहा कि यहाँ एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव आ जाना चाहिए। नेक्स्ट ये हम नीचे ले आए इसको, और इसको हमने कस्टमाइज कर लिया। ठीक है ना, ये कलर मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो हम कलर यहाँ से चेंज करते हैं और इसको इससे रिलेटेड जो कलर्स है ना, हम वो कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये इसके साथ अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये भी इसके साथ अच्छा लगेगा। अब इसको हम, इसको भी कंट्रोल डी करते हैं और इस शेप को दोबारा हम बड़ा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम अपनी मेथोडोलॉजी के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या करें, होते हैं कुछ लिखना। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ सब हेडिंग यहाँ यूज की और यहाँ पे वर्ड लिखा इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये अब टाइम बहुत कम है, 9:56 हो गए हैं और हमारा भी एक काम और रहता था। तो ये हमने इसको फॉन्ट छोटा करें, इसका यहाँ से फॉन्ट छोटा होता है। देखिए जिस चीज को आप क्लिक कर लेंगे ना, यहाँ पे उस चीज से रिलेटेड ऑप्शन आने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने इंट्रोडक्शन लिखा
और यहाँ पे फिर अगेन टेक्स्ट बार में जाके हमने फिर दोबारा एक और टेक्स्ट ऐड किया यहाँ पे, जैसे ये टेक्स्ट है, ये हमने मजीद टेक्स्ट ऐड किया और ये हमने उसमें इंट्रोडक्शन में अपना टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है ना। ये इसे नीचे कर दें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसके लिए फिर आपने टेक्स्ट ऐड किया ऑब्जेक्टिव, और इसको आपने उठा के इस बार में रख दिया। आप ऐसे ही जो है ना वो बार्स यहाँ पे डालते जाएंगे, तो फिर आप देखिए अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका एक पूरा पोस्टर बन जाएगा। ग्राफ आपने डालने हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशंस में आ जाए, एप्लीकेशंस, और यहाँ पे ग्राफ लिखे हैं एप्लीकेशन में, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ग्राफ भी आ जाएंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं आ रहा ग्राफ में, ये चार्ट्स आ गए यहाँ, सॉरी पीछे यहाँ पे चार्ट्स पड़े हुए हैं। अब आपने कोई भी चार्ट डालना है इसमें तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बिल्ट इन चार्ट है, आप यहाँ से उसका डाटा एडिट कर सकते हैं, और वो जो डाटा आप एडिट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं, चेंज करते हैं उसको, तो वो हमारे यहाँ पे भी वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं जो आप यहाँ से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप यहाँ से डालते जाएंगे, ठीक है ना। पिक्चर्स आपने डालनी है वो आप फोटोज में जाके डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड बनाया था, तो हम लर्निंग एनवायरनमेंट की पिक्चर बना देते हैं, ठीक है। वो हमारे उसको बूस्ट करेगी, ठीक है, कि हमने जो पोस्टर बनाया था। फॉर एग्जांपल ये लर्निंग एनवायरनमेंट है, ये शो कर रहा है कि हमारा पोस्टर किस चीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ये मैं अब रैंडमली डाल रही हूँ, आप इसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये नहीं, मैंने जूम आउट करके दिखाया आपको ताकि आपको पूरा लेआउट नजर आ जाए, ठीक है। अब बनाने के लिए आपको अनलिमिटेड ऑप्शन यहाँ पे पोस्टर में मौजूद है। मैंने कुछ चीजें टेक्स्ट एलिमेंट्स वगैरह सिर्फ ऐड करके दिखाए हैं ताकि आप के लिए एक हैंड्स ऑन एक छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ, सो इन माई डिवाइस आई वेंट टू इंसर्ट माई ऐप स्टोर एड ऐप, दिस इज हाउ आई एडिट, ठीक है जी। एंड आई एम देयर वन टू होम शेयर्ड स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, ये बाकी सबको विजिबल है स्क्रीन मेरी? यस मैम, स्क्रीन विजिबल है, आप कंटिन्यू अच्छा, कर मुझे तो सकते परेशान कर दिया आपने। अच्छा, अब हमने पोस्टर जो है, जैसे ये एक पोस्टर है, मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको डूज और डोंट्स बताऊंगी पोस्टर कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं। अब ये बहुत ही खूबसूरत क्लियर पोस्टर है जिसमें जरूरत के मुताबिक चीजें डाली गई हैं, कलर पैलेट का भी ख्याल रखा गया। ये देखिए बहुत क्लियर उसकी हेडिंग है, ये बीच में एलिमेंट्स और आइकन्स का यूज किया गया, उसको उसकी प्रोजेक्शन को एनहेंस करने के लिए ग्राफ्स और ओवरले नहीं है चीजें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डूज क्या है और डोंट्स क्या है। 5 डोंट्स ऑफ पोस्टर डिजाइनिंग, ठीक है। डूज तो मैंने आपको बता दिया कि वही, डोंट्स जो है ना उनके आपने जो नहीं करेंगे वो आपने उसके ऑपोजिट करना होगा, ठीक है। जो पहला जो है वो डोंट है, डोंट ओवरक्राउड विद टेक्स्ट, टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं डालना। डोंट यूज क्लटर्ड लेआउट, लेआउट्स नहीं डालने ज्यादा। ओवर यूज ऑफ कलर्स नहीं करना, विजुअल्स को इग्नोर नहीं करना, और प्रूफ रीड जरूर करना है। अब हम एक एक देखते जाते हैं, फिर हम इसके बाद से वाइंड अप करिए। अब देखिए, डोंट ओवरक्राउड द विद द टेक्स्ट। अब आप इसको देखें, इसमें इतना टेक्स्ट है, इतना टेक्स्ट है कि आपको देख के उलझन हो रही है, आपका दिल नहीं चाहेगा इसको पढ़ने को, ठीक है। तो पहला डोंट आपका ये कि आपने टेक्स्ट ओवर क्राउड नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डोंट ओवर क्लटर, यूज द क्लटर्ड लेआउट एलिमेंट्स इन पिक्चर्स। अब ये इतनी वाइब्रेंट पिक्चर्स हैं और इतनी सारी डाली हुई हैं, इसकी बजाय शायद ये एक पिक्चर ये डालते और ये ना डालते तो ये शायद थोड़ा सा बेहतर लगता है, ठीक है। अकॉस्टिक डिटेक्शन ऑफ वायलिंग इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आप देखें, ये एक क्लटर्ड लेआउट एलिमेंट्स वाला पोस्टर है, तो आपने क्लटरिंग ऑफ लेआउट नहीं करनी, यानी कि उस डिजाइन में बहुत ज्यादा आइकन्स और पिक्चर्स नहीं डालनी कि वो असल फोकस ही हट जाए उसका, ठीक है। फिर अभी आप देखें, इसमें तो कोसे कजा के सारे रंगों का इस्तेमाल किया गया इस पोस्टर में, ठीक है ना। डोंट ओवर यूज कलर्स एंड फॉन्ट्स, ठीक है। बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स, कहीं बहुत छोटे फॉन्ट्स, एक आपने कोहेरेंस की तरह के साथ चलना है। 2 फॉन्ट्स आपने यूज करने हैं, कोशिश करें कि आप 2 या 3 कर लें। एक आपका हेडिंग हेडिंग हो जाएगी, एक सब हेडिंग, और एक बॉडी टेक्स्ट की हो जाएगी, ठीक है, फॉन्ट। और फिर फॉन्ट एक ही हो, साइज आपने जो है ना उनका फॉन्ट्स का वो 3 तरह के साइज रखने हैं, ठीक है। और कलर्स आप जैसे 2 नहीं तो 3 यूज कर लें। कैनवा पे बहुत अच्छी कलर पैलेट्स की सजेशन वो खुद ही दे देता है, ठीक है ना।
डोंट इग्नोर द विजुअल्स। अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, कलरफुल तस्वीरें नहीं डालनी है। अभी ये तस्वीरें कलरफुल होती तो ये कितनी खूबसूरत लगती। ये सब कुछ ब्लू ब्लू किया हुआ है, एक बड़ा ही मॉर्बिड सा इसका डिजाइन है, देखने को दिल नहीं चाह रहा। तो विजुअल्स को इग्नोर नहीं करना आपने, जरूरी विजुअल्स जरूर डालने हैं आपने। लाइक आपने ऐसा नहीं करना कि आप जो एलिमेंट्स चाहिए, जो आइकन्स चाहिए, आप वो भी नहीं ऐड कर रहे। ठीक है, जैसे अभी जो सबसे पहला था वो मुझे अच्छा लगा था उसका क्या नाम है, अ, ये जैसे ये इसने यहाँ देखें उसने यूज किया हुआ लेंस यूज किया हुआ है ऑब्जेक्टिव में। यहाँ उसने देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ उसने बल्ब का यूज किया हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसने यहाँ पे ऑथर्स में ये यूज कर लिया कि हु आर गोइंग टू लीड देम, ये उसने रॉकेट यूज कर लिया। एनालिसिस में ग्राफ्स यूज कर लिए, तो ये बड़ा उसने अच्छा सा बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम ओवर क्राउडिंग पे थे, क्लटर्ड लेआउट, डोंट ओवर यूज द कलर्स, डोंट इग्नोर द विजुअल्स, और डोंट फॉरगेट टू प्रूफ रीड। अब इस वाले में मुझे बताएं कि हमने गलती कहाँ पे है। मैंने बड़ी बड़ी गलतियां लिखी हुई है इसके अंदर, जल्दी से टेक्स्ट बुक मैसेजेस में लिखें, टेक्स्ट बुक में लिखें कि गलती कहाँ पे है। यहाँ पे डोंट फॉरगेट टू प्रूफ रीड। कंड्यूसिव के स्पेलिंग गलत हैं, एनवायरनमेंट के भी गलत हैं, पूरे के पूरे ही गलत हैं, ठीक है। ये लें दोबारा देखें इसको, सब कुछ गलत किया हुआ है। कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो उसमें एजुकेशनल के भी गलत हैं, एजुकेशनल लिखा हुआ है, कंडूसिव के भी ठीक नहीं है, लर्निंग के ठीक है। एनवायरनमेंट लिखने के बजाय ओ मिस है, तो एनवायरनमेंट के भी। तो आपने प्रूफ रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है। तो ये लेट्स मेक अ रिसर्च पोस्टर, ये हम पहले बना चुके हैं। और विजुअल कम्युनिकेशन और इन चीज़ों का फायदा क्या होता है, आपकी जो है डिसएमिनेशन ऑफ रिसर्च एनहेंस होती है, एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, उसकी लोगों की अट्रैक्ट करते हैं आप अटेंशन, ठीक है। अच्छा, अब डाटा कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हैं इसमें, फ्लोरिस स्टूडियो मैंने बताना था। अब ये आप इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आप करेंगे खुद। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ आपको निकाल के दिखा रही हूँ। आपने इस वेबसाइट पे जाना है और इसको आप जितना ट्राई करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है, ठीक है। आपने से अगेन एंड अगेन ट्राई करना है, ठीक है। फ्लोरिश स्टूडियो, ठीक है, ये आपने ये नाम याद रखना है। और इस पे आप देखिएगा, मैं आपको सिर्फ डेटा जो है वो आप इस पे चार्ट्स बने हुए चार्ट्स दिखाती हूँ, क्योंकि बनाना इस वक्त जो है बड़ा लंबा काम हो जाएगा। फ्लोरिस स्टूडियो पे आपने जाना है और साइन अप विद गूगल, अल्लाह करे चल जाए इस टाइम पे, सभी मैच के इंतजार में। अच्छा, ये न्यू विजुअलाइजेशन में आप जाएंगे, ठीक है। और यहाँ जाके आपने अपनी मर्जी का एक ग्राफ सेलेक्ट करना है, ठीक है। चार्ट सेलेक्ट करना है, जिसको करेंगे उसमें बाद में आप जो है वो उसमें आपको डाटा ऐड करना पड़ेगा, उस वहां पे आप डाटा ऐड करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना वो बार रेस चार्ट बहुत अच्छे लगते हैं। ये नीचे चलते जाते हैं, कहीं ना कहीं बार रेस चार्ट आ जाएंगे, फिर हम वो ऐड करेंगे उनको, ठीक है। बार रेस चार्ट, ये तो बस खत्म हो गया। रेस चार्ट कहीं होगा, ये देखें डिफरेंट टाइप की। अगर आपने देखें कहीं पे आपने दिखाना है, विजिबिलिटी दिखानी है कि कौन सी जगह पे ये हिस्टोग्राम्स हैं, पैक्ड सर्कल है, रेडियो डायग्राम, रेडियल ट्री, सनबर्स्ट ट्री मैप्स, ठीक है। हम सनबर्स्ट को खोलते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये अब एक चार्ट है, बड़ा मजे का है। अब ये आपका चार्ट जो है ना कितने अच्छे तरीके से उसकी दिखा रहा है कि साउथ एशिया में लोअर मिडिल इनकम क्लास ज्यादा है, ईस्ट एशिया में हमारे पास हाई इनकम कितनी है, अपर मिडिल वाली कितनी है, ठीक है। ये उनकी जो है ना सोशल जो फाइनेंशियल स्टेटस को दिखा रहा है ये वाला, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम जाते हैं, मुझे बार रेस चार्ट नहीं नजर आ रहा, वो बड़ा मजे, ये स्कैटर प्लॉट आपने बनाना है, कोई भी उसे सिलेक्ट कर लें आप, ठीक है। इसको आप अगर कहें कि मैं इस वक्त आपको सिखा दूं तो मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन होगा ये कि बहुत देर लग जाएगी, सिखाना जो है ना वो इस वक्त आसान नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना।
देर लगेगी। बार रेस चार्ट आपको दिखाती हूँ, वो मुझे जो है ना सबसे ज्यादा इसमें, आपने मैप में कोई चीज शो करनी है तो देर आर लॉट ऑफ हीट मैप है, लाइंस है, पॉइंट मैप है। प्रेवलेंस शो करें तो आप लाइन मैप और उसके साथ हीट मैप वगैरह ऐसा शो कर सकते हैं। ये देखिए बार चार्ट रेस, ठीक है, ये आपको दिखाती हूँ। अब आपने एक डाटा शो करना है फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका ये उनका डाटा है, हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं डाटा को, ये एक जगह है, यहाँ से आप डाटा अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रीव्यू है, ये देखें, अब ये एक देखें, ये डाटा शो हो रहा है इंडिया का, ठीक है। आई थिंक पॉपुलेशन का हो रहा है डाटा शो कि 1990s में, 92 में। अब ये कितना इंटरेक्टिव ग्राफ है, ठीक है। जब अपनी रिसर्च प्रेजेंटेशन में आप इसे शो करेंगे, इस चार्ट को, इस ग्राफ को, तो डेफिनेटली बहुत अपीलिंग होगा ये, ठीक है। इसके साथ ही और भी आप ऑप्शन एक्सप्लोर करिएगा, और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये कैनवा में इंपोर्ट हो सकते हैं। तो आपने इन सब के लिए चाहिए क्या, स्किल क्या रिक्वायर्ड है, आप अपनी रिसर्च में स्टोरी टेलिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए, और बेस्ट वे आउट, अगर रिसर्च आपको आती है तो तभी आप सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो किन चीजों का ख्याल रखना है आपने, अगर आपने रिसर्च किसी जर्नल में पब्लिश करनी है तो आपने देखना है कि आपने कैनवा से अगर कोई ग्राफिकल पोस्ट बनाई है तो उस जर्नल वाले उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ये कि अगर आप कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट बना के कैनवा से लगाते हैं अपनी रिसर्च से रिलेटेड, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ब्रीच नहीं करनी। विजुअल लिटरेसी थ्योरी क्या है, आपने जब बनाना है कोई भी डिजाइन तो उसमें कलर पैलेट चूज करते हुए लोगों की एहसासात का ख्याल आपने जरूर रखना है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही ये मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ। फ्लोरिस्ट स्टूडियो पे हैंड्स ऑन एक्टिविटी पूरे 2 घंटे की हो सकती है, जो कि अलग से होगी, तो इसलिए जो है ना वो आप लोगों ने खुद हैंड्स ऑन करना है। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा, बहुत अनलिमिटेड वीडियोस फ्लोरिस्ट स्टूडियो पे अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। फ्लोरिस्ट स्टूडियो मोस्टली फ्री है, बहुत ज्यादा इसके जो है ना वो फ्री हैं ऑप्शंस। कोई एक आध ऑप्शन जो है ना मेरे ख्याल है उसका वो फ्री नहीं है, तो हमें इतनी जरूरत नहीं है। हम कमर्शियल लेवल पे, फ्लोरिस्ट स्टूडियो बेसिकली इलेक्टोरल प्रोसेस में यूज होता है बहुत बड़े लेवल पे, तो हम लोग तो उनके कोई मतलब वो क्लाइंट्स ही नहीं है ना, टारगेट क्लाइंट्स नहीं, तो हमें वो फ्री में दे देते हैं। एक्चुअल जो टारगेट क्लाइंट्स है फ्लोरिस्ट स्टूडियो जैसे फॉर्म्स के, बहुत बड़े बड़े जिनमें चार्ट्स बन रहे हैं, ग्राफ बन रहे हैं, हीट मैप्स बन रहे हैं, वो इलेक्टोरल प्रोसेस वाले और ये मर्दमशुमारी वाले ये लोग होते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें फ्री होती हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगी, आई होप कि आपको पसंद होगी, आई होगी। आज की जो वेबिनार है बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकी क्योंकि टाइम कम था। थैंक यू सो मच डॉक्टर रामिश। आज आपका दूसरा सेशन है, आपको तो अंदाजा होगा कि आज मेरा मेरा ये बेसिकली तीसरा सेशन है। आई एम रियली एग्जॉस्टेड टिल नाउ। थैंक यू, आपने 1 घंटा जो है वो इंतजार किया, 8 बजे की बजाय 9 बजे हम कंडक्ट किया, तो आज मैं काफी थकी हुई हूँ सारे सेशंस की वजह से, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड टेक अ लॉट ऑफ केयर। आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो एंड आई एम गोइंग टू लीव दिस सेशन। डॉक्टर बशीर, इजाजत है हमें। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग द टाइम आउट। और आपने उसमें पावर पॉइंट में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं थी। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन एंड इस पे जो इंशाल्लाह पावर पॉइंट फॉर रिसर्च होगी ना, उसमें मैं डिटेल में आपको दोबारा ये बताऊंगी, और पावर पॉइंट फॉर रिसर्च में अपने रिसर्च के एस्पेक्ट से मैं पावर पॉइंट आपको बताऊंगी कैसे बनानी है आपने, ठीक है। श्योर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच थैंक यू, मैम फॉर अल्लाह जॉइनिंग अस। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। मुझे पता है इतनी ज़्यादा टेम्पटेशन हो रही होती है क्रिकेट की, उसके बावजूद आप लोग आ गए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लास्ट थिंग आई वांट टू से इज कि ये रिकॉर्डिंग जो है ये यूट्यूब पे अभी अपलोड हो जाएगी कुछ ही देर में। And inshallah, the next session is going to be on 12th, इंशाल्लाह 12 जून को होगी, कल नहीं परसों इंशाल्लाह। और उसमें फिर डिफेंस और प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे इंशाल्लाह, रिसर्च प्रेजेंटेशन और डिफेंस पे। एंड डॉक्टर सादिया विल बी टेकिंग दैट सेम वर्कशॉप एज वेल, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वर्कशॉप इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।